change. Alright, हम कहाँ पर हैं, इसको हम हटा देते हैं. We are at the last page of this chapter, that is page number 20. Okay, so मैंने लिखवाया था इस पेज के ऊपर 20 पेज, फीचर्स ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन. कौन कौन होते हैं? रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस इज पॉजिटिव. दोनों में, अगर all creative acts require some minimum ability to acquire knowledge and capacity to comprehend. अब क्रिएटिविटी में क्या क्या चाहिए देखो जरा. क्रिएटिविटी होने के लिए क्या चाहिए बेटा? कुछ एबिलिटीज तो नॉलेज भी होनी चाहिए आपको. जैसे मैं इफ आई एम गुड इन मे बी म्यूजिक, गुड एट म्यूजिक, तो मुझे उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ना. सारे गामा, कुछ रिदम्स आने चाहिए, कुछ क्या बोलते हैं उसमें, जो भी ताल आने चाहिए, है ना, रागाज आने चाहिए. सो आई शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इट. ओके, देन आई शुड हैव कैपेसिटी टू कॉम्प्रीहेंड. मुझे बताना भी आना चाहिए भी ये देखो जी मैं इस राग की बात कर रही हूँ, मैंने ये 2 राग मिक्स कर दिए. आई एम एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट वॉट एवर आई एम क्रिएटिंग. रिटेन, मुझे याद भी रखना है. ये सारा कुछ जो हो रहा है, कॉम्प्रीहेंड, रिटेन, ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है. एंड रिट्रीव, अब मैंने रिटेन कर लिया एंड वापस रिकॉल करना, ये भी. सो क्रिएटिव राइटर्स फॉर एग्जाम्पल नीड फैसिलिटी इन डीलिंग विद लैंग्वेज. नॉलेज होनी चाहिए लैंग्वेज की. The artist must understand the effect that will be produced by the particular technique of painting. तो उसे पता होना चाहिए क्या इफेक्ट आएगा, कैसे होगा. Scientist must be able to reason and so on. Scientist ने क्या कहा, क्या सोच के क्या मिक्स किया, क्या किया, तो उसके पास reasons होने चाहिए, है ना. So it means they should be able to comprehend also. Hence, underline, a certain level of intelligence is required for creativity. Creativity भी बिना intelligence के नहीं हो सकती. But certain level, but beyond that intelligence does not correlate well with creativity. क्या मतलब हुआ? Beyond that intelligence मतलब हम कहीं बहुत highly IQ हो गया और creativity इंश्योर होती है, वो नहीं. But we need to have some level of intelligence. It can be concluded that creativity can take many forms and blends. Some may have more of intellectual attributes. Others may have more of attributes associated with create. कुछ के attributes हो सकते हैं brain से, cognition से, knowledge acquiring पे हो, कुछ के creativity जैसे हो, bend की बात कर रहे हैं. But what are the attributes of a creative person? Yeah, you may like to discuss the attributes which are common to all kinds of creative person. ये लिखने हैं अब आपने. Creativity test came into existence to assess variations in terms of the potential for creativity in contrast to intelligence. A general feature of most of, यहाँ से लिखोगे आप, a general feature of most of the creativity test is that they are underlined, they are open-ended. Open-ended जैसे मैंने आपको खुला छोड़ दिया और बोला कि draw a tree. Open-ended, मैंने आपको वो नहीं कहा draw palm tree, draw mango tree, draw this tree. मैंने आपको बोला open-ended का मतलब होता है any answer is acceptable which is related to the question. Okay, they permit the person to think of different answers. They could be different answers to the question or problems in terms of his or her experience. Whatever these may have been, these help the individual to go in different directions. मतलब मैंने कहा खुला, ओपन कर दिया. ओपन एंडेड मीन्स खुला, आप कहीं भी किसी भी डायमेंशन में सोच कर बना सकते हैं. There are no specified answers to the questions or problems. जैसे MCQ में तो ABCD में एक ही आंसर होगा, लेकिन ओपन एंडेड सब्जेक्टिव्स जो होते हैं हमारे, वो ओपन एंडेड है. जैसे बोला एनालाइज करिए और बताएं ऐसा क्यों हो गया. सो जो एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब ओपन एंडेड है. There are no specific answers. Therefore, there is freedom to use one's imagination and express in its original way. Creativity test involves divergent thinking. आपको याद है divergent thinking? एक थी convergent thinking, एक थी divergent. पीछे रेफर करिएगा और फिर देखिएगा. एक में हम एक ही तरह की नॉलेज अप्लाई करते हैं, दूसरे में हम कुछ नया क्रिएट करते हैं. Okay? And assess such abilities as ability to produce a variety of ideas. That is, ideas which are off the beaten track, off the beat. मतलब against जाकर भी हो सकते हैं. Ability to see new relationships between seemingly unrelated things. Ability to guess causes.
मतलब एक लिस्टेड कॉजेज होते हैं ना नोट्स में आते हैं, जैसे पॉवर्टी के क्या क्या कारण है, आपने एक नया कारण सोच के बताया, ये भी तो हो सकता है मैम। हाँ, सो अबिलिटी टू गेस द कॉजेज, कॉन्सिक्वेंसेज, ability to put things in new context, etc. This is contrary to the tests of intelligence which mostly involve convergent thinking. किसमें? इंटेलिजेंट टेस्ट में हम ज्यादातर जो लर्न किया उसको टेस्ट कर लिया। Convergent. In test of intelligence, the person has to think of the right solution to the problem and the focus is on assessing ability such as memory. Convergent जो होती है वो आपकी मेमोरी टेस्ट करता है। आपका जो पेपर आएगा ना बेटे बोर्ड में 80% कन्वर्जेंट थिंकिंग टेस्ट करता है, 20% डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट करता है। Similar happens similarly, the pattern is same in almost now all the papers. Economics में भी सेम ही होगा। सो इसमें क्या चेक करते हैं, कुछ में तो आपको बोलते हैं लर्न कर लो बट एज इट इज ये आना ही है, तो इसमें आपकी मेमोरी चेक की, रिटेंशन, रिट्रीवल, ये सब चेक किया, क्लियर थिंकिंग, परसेप्शन, एबिलिटी। देयर इज लिटिल स्कोप फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ओरिजिनलिटी। हम आपको बोलते हैं बेटा इसमें नहीं आपने अपनी कुछ नई कारीगरी करनी, इसको आपने एज इट इज थ्योरी को लिख देना है, क्योंकि उसमें आपकी सजेस्टिबिलिटी, आपकी इमेजिनेशन इज नॉट बीइंग टेस्टेड। इमेजिनेशन टेस्ट करने के लिए आपको केस स्टडीज आ जाएंगी। Since expressions of creativity are varied, tests have been developed using different stimuli. अलग अलग टेस्ट भी हैं जिसको करने के, तो इसके ऊपर हेडिंग लिख लो, क्रिएटिविटी टेस्ट। कौन से हो सकते हैं? वर्ड्स, फिगर्स, एक्शंस, साउंड्स, इनसे टेस्ट किया जा सकता है। These tests क्या मेजर करते हैं बेटा? General creative thinking ability, like ability to think of a variety of ideas on a given topic or situation. हमें होता है ना बहुत बार कि कौन से कंपटीशन में होता है कि आपको एक वर्ड दे दिया एंड यू हैव टू क्रिएट द होल ऐसे बिहाइंड और मे बी अ स्टोरी बिहाइंड, तो उस तरह के टेस्ट को भी हम वेट टेस्ट बैटरीज को यूज करते हैं। दीज टेस्ट मेजर जनरल क्रिएटिव थिंकिंग एबिलिटी, जनरल रीजनिंग के जो पेपर होते हैं ना, ability like ability to think of a variety of ideas on a given topic, alternative way of looking at the things, problems or solutions, to guess causes and consequences, to think of unusual ideas to improve and to use common objects, ask unusual questions and so on. अजीब अजीब से क्वेश्चंस पूछ के भी आप अगर ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या करोगे, तो अब आपकी क्रिएटिविटी आप क्या बताते हो। A few investigators have also developed tests of creativity in different areas such as literacy, literary creativity, literacy नहीं, literary creativity, writing में, and then scientific creativity, mathematical, जो पीछे हम सब पढ़ चुके हैं। Some of the famous psychologists, कौन कौन से अंडरलाइन करें, who have developed creativity tests, कौन कौन है, गिलफोर्ड है, टॉरेंस है, खातना, वॉल्श, कोगन, and all these names, Bakar, Mehdi and Pasi, Mehdi. Each test has a standardized procedure, a complete set of manual, proper way है, ऐसे नहीं कि कोई भी टेस्ट बन गया, उसके manuals बने हुए हैं, instructions हैं, and interpretation guide. These can be used only after extensive training in administration. हम आप नहीं यूज कर सकते, जो trained psychologists हैं उन्हें इनके बारे में समझाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरप्रिटेशन, अब आपको आपने बच्चे से बोला इस टॉपिक पे लिखो, लिख तो दिया, हाउ विल यू जज कि उसने ये जो लिखा है उसकी क्रिएटिविटी किधर है, क्या है, कितने लेवल की है, उसके लिए तो हमने कभी ट्रेनिंग ही नहीं ली। सो इंटरप्रिटेशन और गिविंग द टेस्ट स्कोर्स इज आल्सो नीड्स ट्रेनिंग। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1। नाउ इट इज योर मॉरल ड्यूटी, मैं वैसे डेडलाइन आपको दे देती हूँ 27th आई थिंक, यस, बाय 27th ये जो आपके रिव्यू क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में लास्ट में, ये आपने आई थिंक दे आर जस्ट 12 क्वेश्चंस, यस, सो यू आर सपोज्ड टू पेन डाउन, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द बुक, नोट्स और मे बी सम रेफरेंस बुक इफ यू हैव। सो आपने ये 12 के 12 आंसर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं। नोट आई मीन क्वेश्चन नहीं लिखने, आंसर्स लिखने। Once you are done with that, 27th को I expect you to upload this assignment on the app, all right, so that I can go through. फिर मैं 28th को इसके pages बता देंगे कहाँ कहाँ इसके answers हैं, discussion कर लेंगे, and then we will move further. Next chapter हम साथ ही start कर देंगे, आप इसको तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसका MCQ test का schedule will be sent to you very soon, all right. Thank you so much.